Every victory, every unforgettable moment which you see on your screens, there is always a world behind it which always goes unnoticed. तो मेरे पास भी और कोई काम नहीं था उस टाइम पे. आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग. आई विल नॉट गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर और मे बी आई विल बी किक्ड आउट. 3 सबसे डिफिकल्ट क्रिएटर्स कौन है एसएटीएल में डील करने वाले? अनिमेश भी मेरे से 2-3 सवाल ऐसे पूछेगा जिससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये क्रिएटर का गलती है. पता चला कि कोई लौंडा निकले और मैं उसको रिप्लाई कर दूं, वो स्टोरी लगा के टैग कर दे मुझे भी आपको भी. आउट ऑफ द वे जाके कभी किसी को थप्पड़ पड़वा रहे हैं तो कभी किसी को नींबू चटवा रहे हैं. इट्स वेरी चैलेंजिंग टू join your friend's company as an employee. So welcome back to SATUL Heroes Behind the Game, featuring my man, my brother, my dost, and our creative production, direction, marketing head, Swaraj aka Pochi. Thank you so much Goldie bhai for having me on your show. Today we are delving into a very pivotal figure at SATUL, from being a childhood friend to Animesh aka 8-Bit Thug to becoming the head of current marketing division at 8-Bit Creatives. He's been instrumental in shaping a lot of creative and strategical directions in SATUL and in 8-Bit. Please welcome Swaraj Chauhan aka Pochi bhai. Thank you so much. How do you feel Pochi? Finally आप कैमरा के बाहर के तो बीच बीच में आते रहते हैं जी. but those are mostly moments which are captured incognito. कभी आप बाथ टॉवल में आपको कोई पकड़ता है, कभी आपको कोई टॉवल में पकड़ता है. Correct. So how does it feel to have a full-fledged conversation today and let people know about yourself? Feels great to have to have been sitting in front of 3 cameras and in a setup like this. Usually आदत होती है पीछे रहने की. हाँ, usually I am at the back of the camera behind the scenes and mostly directing or whatever. तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा uncomfortable हूँ क्योंकि आदत नहीं है. तो ऐसे आप हम लोग को अनकंफर्टेबल जो फील कराते हैं आउट ऑफ द वे जाके, कभी किसी को थप्पड़ पड़वा रहे हैं तो कभी किसी को नींबू चटवा रहे हैं. तो वो सब बातें तो आगे आएंगी आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में. एंड लेट पीपल ऑल्सो नो कि यू जस्ट डोंट डू दिस, what all other things you have been doing with us. Swaraj, where is your association with Animesh dates back in the childhood, right? Correct. Like I have known Animesh for more than I think 15 years. Like Okay. more than 15 years. So सब viewers से आप share करें कि ये childhood friendship, how did it turn into a professional collaboration at 8-Bit and SATUL? I used to run a digital marketing agency, a very small one, very local digital marketing agency back in Guwahati when this was before COVID. I think हिंदी में comfortable रहेंगे हमारे viewers. I'll keep it bilingual. ठीक है. तो COVID से पहले की बात है ये. I think it was back in 2018 when I started that agency in Guwahati. And we were mostly dealing with restaurants and cafes and basically F&B businesses. So after COVID came, the F&B sector was the most badly struck sector, and we had lost all the clients at that time, and थोड़ा problem हो गया था उस time, agency बंद हो गई थी. And me and Animesh, we go back in time, like we've been childhood friends, but there was no professional relation between us. At that time, I think Animesh used to live in Bangalore when he started 8-Bit and everything. So because COVID came and everybody was traveling back to their homes, Animesh came back home in Guwahati and I was in Guwahati, and we had met after like years. Sorry, इस time तक 2020 back in COVID, Right. Animesh already 8-Bit and SATUL, I was also part by then. Right. It was already working. Right. Animesh was already, Yeah, we were already. 8-Bit had already taken shape. Yeah. And there SATUL was yeah, about to form. Correct. No, SATUL was also formed. Yeah. You had a gaming house in Yes, place. yes. And मैंने जब ज्वाइन किया उसके जस्ट आई थिंक 1-2 महीने पहले ही आपने नया गेमिंग हाउस का इनॉग्रेशन किया था और जस्ट कोविड आ गया था. Got it. राइट. तो उस टाइम पे Animesh had called me and said कि you are into I was into photography always, and I've been a professional photographer like all my school life and college life, and then I had done it professionally. So Animesh had called me at his place and he was like, yeah, I have to shoot some content and I cannot obviously go out of the house because quarantine चल रहा है, and I cannot travel to Mumbai or wherever, so why don't you come at my place and shoot some content for me. I was like, okay, I will do that. And मैं फिर उसके साथ हम लोगों ने 2-3 वीडियो शूट करे. आप अगर थक के चैनल में पुराना जाके देखोगे, माई क्वारंटीन स्ट्रीमिंग सेटअप, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो आई शॉट फॉर हिम.
एंड देन उसके बाद जितने भी उसके वीडियोज, सो ही लव्ड द वीडियो, ऑब्वियसली द ऑडियंस ऑल्सो लव्ड द वीडियो बिकॉज द क्वालिटी वॉज वेरी नाइस. आई हैड वेरी गुड इक्विपमेंट बैक देन, एंड उस टाइम पे इतना हेवी इक्विपमेंट, माइक्स वाइक्स नहीं चाहिए होते थे. वो कैमरा का इन कैमरा साउंड में ही हम लोगों ने वो वीडियो शूट किया. बट दैट केम आउट रियली वेल एंड अनिमेश लव्ड इट, ऑब्वियसली द ऑडियंस ऑल्सो लव्ड इट. सो अनिमेश ने बोला कि यार अच्छा वीडियो बना, लाइक लेट्स कीप इन टच एंड तू आते रहे एंड मेरे लिए कंटेंट बनाते रहे. मैं बोला ठीक है, विल डू दैट. तो मेरे पास भी और कोई काम नहीं था उस टाइम पे. आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एंड एजेंसी बंद हो चुका था मेरा. देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जब वी kept creating content and it was working out good for Animesh also, then he offered me a position at 8bit. I remember he spoke to you and उसने बताया था आपको कि we had never spoke at that time. I think आप एक फंक्शन के लिए आए थे गुवाहाटी, तब हम लोग मिले थे. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ यू एंड ऑल द अदर SATL creators. तो Animesh told me that I am offering you this position at 8bit and come to me with the team to gaming house and let's meet everybody. I was a little nervous at that time because all my life I had just been a photographer only and I was always behind the scenes and directing and सब कुछ यही सब करता था. I did not know कि 8bit creators में आके, because it's more of a talent agency, तो मेरे पास कोई talent agency का prior experience नहीं था. बट अनिमेश ने मेरे को लिटरली मतलब स्क्रैच से सिखाया कि ऐसे मेल्स चेक करते हैं और दीज आर द मार्केट रेट्स एंड ऐसे हम लोग काम करते हैं. तो देन आई केम टू गेमिंग हाउस जस्ट राइट आफ्टर फर्स्ट वेव. आई थिंक 2021 में जनवरी में. एक साल हो गया था कोविड को. दैट वाज ओल्ड गेमिंग हाउस. थर्ड वेव. सो दिस इज हाउ यू एंटर्ड और became a part of SATL or 8bit. Oji, initial days में until date 8bit is a part you are doing your pretty well there. But ये आप शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं था कि आपका 8bit से कोई, लोग समझते थे कि आप SATL कंटेंट के लिए यहाँ आते हो, वहीं वीडियो शूट करते हो. क्योंकि मुझे याद है पहले तो आप क्रिएटर्स को पकड़ के उनके फ़ोटो शूट्स और अपने फ़ोटो टैलेंट खींच के फ़ोटो खींचते थे और आपकी जो इंस्टा एक उड़ गई है उसमें आप पोस्टिंग भी करते थे और सबके फोटो सेशंस चाव से करवाते थे. करेक्ट. तो व्हाट वाज दैट, वो क्या था? I mean, as I already mentioned, I was always a photographer. I was always a behind the scenes guy, and I had prior experience of how to beautify content and because I've worked with a lot of big brands before entering 8bit and SATL also. So I had this thing in my mind कि content should be very top notch and camera quality should be top notch. इसलिए उस टाइम में when I came to gaming house, I saw कि content तो अच्छा बन रहा है but the quality is not that good. तो मैं पकड़ जब thumbnail की quality is not good, तो उस टाइम मैं पकड़ के creators का shoot वगैरह करवाता था. and हाँ, तो वही उसी चीज़ से actually मैंने शुरू किया था. क्योंकि I remember before formally being a part of 8bit, you were here for a couple of months doing all these things only. Correct. Right. At that time I remember we had started. So you started with a photographer come creative person to SATL, if I'm not wrong. Right. You're right. तो वो जो journey है वो बाद में 8bit में तब्दील हुई, right? Correct. And when first time I came to gaming house, I had not joined 8bit. I had just come as Animesh's friend and someone who does content for Animesh. Yeah. So Animesh helping others too. Correct. Animesh had introduced me to other creators and I was doing content for everybody then. Transitioning from a personal friendship to a professional collaboration can be a lot challenging in a lot of times. We have seen this in a lot of examples. So what motivated you to join SATL or 8bit, and how did you navigate your shift from being a digital marketer and a photographer by passion to a talent manager and creative head kind of thing which you were doing in the early stages at SATL? I think the transition was very smooth. I did not even realize कब time निकला and we kept working and Animesh के साथ भी I have like a lot of people have asked me this question कि it's very tough, जैसे आपने बोला, it's very challenging to join your friend's company as an employee and to work alongside your friend because sometimes it's like the friendship में hindrances आ जाते हैं because of the professional work that you're doing.
but honestly there have been, see, there's always ups and downs, but honestly speaking, Animesh is the best boss ever. I mean, because he has not treated me like an employee ever. I have always been a friend to him only. मैं बहुत डांट खाता हूँ, मैं आपसे भी डांट खाता हूँ, अनिमेश से भी बहुत ज़्यादा डांट खाता हूँ, बट दैट आई ऑल्सो नेवर टेक दैट पर्सनली टू माई हार्ट, वेयर आई थिंक कि इट विल स्पॉइल माई फ्रेंडशिप, बिकॉज आई ऑल्सो कीप, सी वो दोस्ती वाला पोची एक अलग नहीं इंसान. तो कभी, सॉरी टू कट ऑफ, मतलब कभी नहीं लगता कि यार ये, जैसे चलो मेरे को आपने शुरू से बड़े भाई का दर्जा दे दिया, करेक्ट, मानते हो, सुन लिया, मैंने आपको बोल दिया, आप सुन लिया, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस या दैट इज अंडरस्टैंडेबल. बट कभी ऐसा हुआ है कि अनिमेश भाई बचपन से चड्डी बड्डी रहे हैं, अभी आज मेरे को दैट काइंड ऑफ फीलिंग आया है कभी ऐसा कि यार ये देयर माइट बी इंस्टेंसेस कि कुछ बातें लग जाती होगी? राइट. आई नो व्हाट यू आर आस्किंग, लाइक Yeah. यू नो, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. आई एम वेरी ब्लंट कि भाई तेरा दोस्त रहा है बचपन से, और दोस्त भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अनिमेश आल्सो, आई थिंक, मतलब उसके लिए भी, बिकॉज मैंने अपने दोस्त के साथ काम किया हुआ है पास में, सो आई नो. राइट, सो मतलब जहाँ काम थोड़ा खराब हो रहा है, आपको बोलने में भी खराब लगता है कि दोस्त भी है मेरा, एंड वो ऐसा, बट आई एम प्रीटी श्योर अनिमेश को भी व्हेन ही रियलाइजेस गुस्से के बाद कि भाई राइट कि ये क्या हो रहा है, ये मैंने ऐसा क्यों बोल दिया. मैंने भी देखा है बहुत बारी दैट ही रियलाइजेस ऑफन, ही इज कम टू मी आल्सो कि हम पोची को दे दिया. राइट. व्हाट इज योर thought process at that time? See, I'll tell you, Probably early times and now. I'll tell you, there are 2-3 things to it, okay? First is, like, first comes my own understanding, because I know it's somebody's business, and if I will fuck it up, I'll not get more opportunities in future, or maybe I will be kicked out. And that is, वो मेरा रोजी रोटी है, तो I do not do bullshit with it. I do not fuck it up. I try to not fuck it up as far as possible. And I know Animesh very close, so क्या है ना, वो ट्यूनिंग वाला भी बात हो गया मेरे और अनिमेश में, because he knows what goes into my mind and I know what goes into his mind. He's a very shrewd businessman. When he means business, he means business. So when we are talking business, we keep our friendship aside always. And I also try to, you know, मैं उसको निराश करने का मौका मतलब नहीं देना चाहता, बहुत कम से कम देता हूँ, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने कुछ किया या मैंने थोड़ा नेग्लिजेंस दिखा दिया, देन वो मेरे को डोज भी देता है, एंड वो हैंड तो वो मेरे को डोज देने के जस्ट 1 घंटे बाद वो मेरे को ये पूछ ले कि चल पार्टी करने चलते हैं, या चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ. सब दोस्तों में ये चलता है. राइट. We got to know about your and Animesh's friendship and your journey and your transit to SATL. थोड़ा अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी पढ़ाई लिखाई, your education, your family. So I've always, I think everybody knows that Animesh is always my childhood friend. तो मैं I was also Keep aside that thing. Just स्वराज चौहान, his family, कहाँ पढ़ाई करा, कितना पढ़ा, पढ़ाई से ट्रांजिट मन था नहीं था, all those things. So I was born and brought up in Guwahati. हाँ. Like I've done my schooling and my higher secondary in Guwahati, obviously, and I was always a photography enthusiast since my school days, like class 8th से 9th से, and I remember my dad had bought me this camera जो मेरे को चाहिए था उस टाइम पे. I started clicking, वो वैसे ही शुरू होता है, you know, sunsets का फ़ोटो खींचना and वो flowers का फ़ोटो खींचना और वैसे. Then used to take part in some local level competitions photography के, and I was always a photography enthusiast. उसके बाद I had gone to my dad after my 12th completed in Guwahati कि मुझे journalism करना है, mass media में admission लेना है, and at that time I don't think मेरे family में कोई mass media या ऐसा कोई कोर्स जानता भी नहीं था, and they were like कि ये सब क्या है, या तो BCom करो या BBA करो या CA करो, ऐसा ही कुछ था. तो आई लाइक कि नहीं, BCom अब आजकल मुझे मीडिया स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम अ फोटोग्राफर. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर इन माई लाइफ. तो फिर मैं दिल्ली आया. आई हैड स्टेड इन दिल्ली फॉर 4 years. मैंने अपने कॉलेज किया वहाँ पे. आई डिड जर्नलिज्म 3 साल, एंड उसमें जो आपका स्पेशलाइजेशन होता है उसमें मैंने प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में किया था स्पेशलाइजेशन. 1 साल का होता है वो. तो उसमें आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द सीन्स कैसे शूट होता है एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ एजेंसी
मैं फ्रीलांसर बन गया था। वो सब आप बता चुके हैं। हाँ, वो फोटोग्राफी करता था मैं एक एजेंसी के लिए, दैट वाज मुंबई बेस्ड एजेंसी, बट अच्छा सॉरी, हाँ दैट वाज अ मुंबई बेस्ड एजेंसी हु यूज्ड टू शूट ICC, IPL, लैक्मे फैशन वीक, रेड बुल, ऑल दीज थिंग्स। तो उन्होंने मेरे को अपना फोटोग्राफर बनवा लिया था दिल्ली में, तो आई वाज हैंडलिंग ऑल द शूट्स फॉर देम इन दिल्ली एंड I've worked with them for a couple of years as a freelancer. लैक्मे फैशन वीक शूट किया, रेड बुल के लिए शूट्स करे, रिलायंस फाउंडेशन का यूथ स्पोर्ट्स होता था वो शूट किया। एंड योर फैमिली? माय फैमिली, दिस माय डैड, माय मॉम एंड मेरी छोटी बहन है एक, शी इज़ परस्यूइंग लॉ, शी स्टेज बैक इन गुवाहाटी ओनली, वी हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। सो ये ट्रांजिशन यार स्वराज, एक तो होती है कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, हु वर्क बिहाइंड द कैमराज, बिहाइंड द सीन, दे कीप ऑन वर्किंग। एक हो गया सो मच लाउड कैमराज, so much fame, so much attention. Obviously I've been, बहुत सारे vlogs में भी तुम आते हो, राइट। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब पहली बार ऐसा पता लगने लगा, ओ भाई ये तो लाइन भी शिफ्ट मारा तो ऐसा मिला रहा कि, तो क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम? फर्स्ट सी, जब मैंने एनिमेश को ज्वाइन किया था, हाँ, तब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को खुद को नहीं पता था कि एनिमेश एग्जैक्टली क्या करता है। I knew there's something related to gaming, but then when I started to understand the business in depth, I realized कि हाँ, this has a lot of potential and this has just started in India and you know it has a lot of potential for growth in the country. So मैंने पापा को, so the first time I came to Bombay with Animesh, मैंने पापा को बताया था कि मैं ऐसे ऐसे एनिमेश के साथ जा रहा हूँ, उनका एक गेमिंग हाउस है वहाँ पे एंड मैं वहीं पे उनके साथ रहूँगा और थोड़ा कंटेंट वॉन्टेंट बनाने में उनकी मदद करूँगा, व्हाटएवर। सो माय डैड आल्सो डिडंट न्यू कि एग्जैक्टली क्या करेगा, but he had this faith on me. I have always been my family has been always supportive, right? They have always been supportive because they trust me. तो कभी वो चीज़ कि कैमरा में आया हो, yeah, so my mom is very fond of relatives calling your family, ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है, अभी रिसेंट में काफ़ी टाइम हुआ है ऐसा। एंड जो मेरे जो नानी के घर के साइड है, दे लिव इन राजस्थान, तो देयर आर अ लॉट ऑफ कजिन्स जो मेरे से छोटे हैं, who follow SAT, who have been following SATUL before I joined. So they have known Mortal and all these people before I joined. कैसे लगता है आपको पर्सनली? बहुत अच्छा लगता है। I mean they keep calling me, they keep calling my mom and you know they keep telling her ki you know we saw Pochi in the vlog and we saw him doing stuff, and especially after we did this video with our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my dad had called up all my relatives and you know he was very proud कि you know मेरा बेटा ऐसे ऐसे वहाँ जाके आया, because I was the one who had accompanied the people inside the PM house. तो हाँ, मतलब सबको पापा बता रहे थे फ़ोन करके and everybody started calling me and all. And my mom is also very fond of like माफिया का vlog, वो बहुत देखती है, मामा का vlog बहुत देखती है, तो she always keeps searching me and you know अपने घर वालों को भेजते रहते हैं कि देखो पोची आया ऐसा करके. सो या इट्स आई फील वेरी नाइस एंड ऑब्वियसली हु डजंट लाइक अ लिटिल फेम, तो उसमें तो मज़ा ही आता है. अभी करंटली 8-bit में और SATUL में क्या रोल निभाते हो? बेसिक लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए, एंड आगे भी मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप थोड़ा लेमैन लैंग्वेज यूज़ करिए, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन वी नो, but I think this is for the people who are probably aspiring to be someone like you, or probably is at a pace where you were once, तो थोड़ा easy हो जाएगा उनके लिए भी. Right, I'll keep it very simple and I'll not ज़्यादा technical नहीं होऊंगा. I'll like keep it very short also. So in 8-bit, I mostly look after the overall operations. Obviously Animesh, you and Mortal, all you people are the head of the operations. But on a daily basis, Animesh doesn't have the time to look after all the queries that we get and all the potential brand queries जो आती हैं हमारे पास. अभी कोई क्रिएटर है, उसको कोई प्रॉब्लम है, इनवॉइसिंग में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है, एंड किसी को रेट्स पिच करने हैं, कोई कैंपेन क्लोजिंग पे है, बट Animesh ऑब्वियसली ही ट्रैवल्स अ लॉट, तो उस चीज़ में उस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने के लिए आई एम ऑलवेज द डिसीजन टेकर and I go ahead and close things. So I'm basically the head of operations, you can say, the overall operations like brand partnerships, talent management. Obviously we have a larger team
एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन रोल्स. कोई क्रिएटर को मैनेज करता है, कोई ब्रांड्स को मैनेज करता है, एंड द टीम इज़ ऑब्वियसली ग्रोइंग. तो एंड बिकॉज मैं अनिमेश के साथ सबसे पहले से हूँ, तो आई नो इन एंड आउट what goes inside and what Probably goes you were outside. the first hiring at 8-bit Creative. Correct. right? मेरे से पहले आई थिंक अनिमेश अकेला ही कर रहा था. There were no employees. I was the first employee. आगे को लेके what are your organizational goals which you see at SATUL and 8-bit? 8-bit तो we understand it's a digital marketing company, talent management company. Right. That is something which has to be dealt on the market structure and market positioning के हिसाब से ही वो काम चलता है. How do you vision both of these companies and where do you see and what do you think should be the goals for the future being at such a responsible position? I think for 8-bit we are massively working on expanding the roster, because we have always been the name in the industry that has the biggest gaming roster, and I think that will be our goal for the next few years, that we expand our roster as much as possible, getting in creators who are doing well, hunting creators जो अच्छा कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनके साथ काम करना, एंड यू नो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी केस स्टडीज़ बनानी है, लाइक वी हैव डन इन द पास्ट, लाइक अनिमेश हैज डन इन द पास्ट. जोकर की हवेली, जोकर की हवेली आई थिंक वाज योर फाइंड. जोकर की हवेली, स्नैक्स, राइट, पायल, राइट, सो स्काउट. Yeah, correct. So Snacks and Payal, all these were like before I entered. जोकर की हवेली को मैंने अपने सामने देखा है कि we used to watch his streams and recently HFPP and Russia. Right, correct. So that will be our goal, I think, to expand the roster and to work with brands who have not even thought of working with anything related to gaming. Right. So that's our goal basically, because जब मैंने join किया था, I think back in 2021, I don't think there were much non-endemic brands. When I say non-endemic, like apart from tech and mobile जो काम कर रहे थे gaming में, but now I have seen a lot of FMCG brands and all these brands have come. तो वही aim रहेगा आगे. So Swaraj, dealing with creators, obviously देखो आप you are a part अनिमेश के दोस्त हो, right. तो वो कहीं ना कहीं एक तुम्हें प्लस तो है ही कि भाई यू आर द बॉसेस फ्रेंड. देन कम्स की डीलिंग विद क्रिएटर्स एज अ एम्प्लॉय एट अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर लेवल, चाहे आप हेड भी कर रहे हैं, डीलिंग विद क्रिएटर्स विद सो मच numbers. Obviously we know at SATUL people have been grounded, right. but कभी कुछ ऐसा, we don't name anybody, but कभी ऐसा हुआ है कि कुछ क्रिएटर से कुछ ऐसा हो गया हो कि बैकलैश हो गया हो कि भाई तू कौन, या हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, बिकॉज आई नो तू ब्रांड से फ्रस्ट्रेटेड होके ही किसी क्रिएटर के पीछे लगेगा उस केस में. Right. तो कभी ऐसा हुआ है? आई मीन लाइक there have been times where हाउ डू यू डील विद इट इन दीस केसेस? I'll tell you. So there have been cases in the past where there's something wrong that is going on in a campaign. See, I try to analyze the problem. कोशिश कर ज़्यादा हिंदी. ठीक है, हाँ. मैं मतलब हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम को एनालाइज करूँ एंड पता करूँ कि वो ब्रांड साइड से प्रॉब्लम है या मेरे क्रिएटर का प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं तो अपने क्रिएटर का साइड लूँगा हमेशा. एंड बट हमेशा वो चीज़ वर्क नहीं करता है, बिकॉज यू ऑलवेज नो कि क्रिएटर्स बहुत बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ लाइन जाके बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं जो ब्रांड को नहीं पसंद आती है, एंड देन वी आर द वंस हु फेस बैकलैश फ्रॉम द क्लाइंट. तो ऐसा कभी बहुत टाइम हुआ है कि आई एम इन अ स्पॉट, मैं एक सिचुएशन में आ गया हूँ एक क्रिएटर के साथ, क्रिएटर मेरे को बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, एंड ब्रांड मेरे को बोल रहा है कि ऐसा करवाओ क्रिएटर से. तो उस सिचुएशन में आई कैन नॉट ऑब्वियसली गो एंड फाइट विद द क्रिएटर, बिकॉज क्रिएटर को भी निराश नहीं करना है एंड ऑब्वियसली ब्रांड को निराश नहीं करना है, बिकॉज फिर कल ब्रांड वापस नहीं आएगा. तो ऐसे सिचुएशन में आई मोस्टली डील very calmly and with a very calm mind, and I just stop the conversation there with the creator. But हमने आपको गुस्सा होते हुए देखा है कुछ जगहों पे, मैंने पर्सनली देखा है, और कई बार आप मेरे को भी रीच आउट कर देते हो. हाँ, so I was coming to that. Correct, I was coming to that. So मैं क्रिएटर के सामने अपना वो हीट दिखाता नहीं हूँ. I usually tend to call either you or Animesh to resolve this, because you guys have a different tuning with the creators, because most of the creators in our roster have grown inside our organization, and they've grown in front of you. So you have that that
पेरेंटल obviously. थिंग ओवर देम. सो आई थिंक उस वैसे सिचुएशंस में आई ऑलवेज रीच आउट टू यू एंड अनिमेश कि देखो यार इस सिचुएशन ऐसा हो गया इस क्रिएटर के साथ, वो डिनाई कर रहा है, ब्रांड बोल रहा है करवाना है. देन अनिमेश भी मेरे से पूछता है, अनिमेश भी मेरे से 2-3 सवाल ऐसे पूछेगा जिससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये क्रिएटर का गलती है एंड ब्रांड का गलती नहीं है. बिकॉज अगर ब्रांड का गलती है तो आई वोंट एवर गो टू अनिमेश. अनिमेश भी बोलेगा कि नहीं करेंगे, ब्रांड को मना कर दो. इसी का एक फॉलो अप सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, बट बी ऑनेस्ट अबाउट इट. क्या आपको लगता है कि आपका ये एक सेम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आपका ये दोस्ती वाला एंगल ना होता, चाहे वो अनिमेश से, चाहे वो सारे क्रिएटर्स से, चाहे वो मेरे से, एक जो ब्रदरली दोस्ती आपका सबसे भाईचारा, आपका एक वो फ्रेंडशिप, एकदम डीप फ्रेंडशिप जो सबसे हो गया है, इफ़ इट वुड हैव बीन मोर ऑफ अ प्रोफेशनल थिंग, जैसे आजकल वी हैव जयेश भाई, तो वो थोड़ा सा आई सी हिम गेटिंग थिंग्स डन कंफर्टेबली बिकॉज पीपल सी हिम एज अ प्रोफेशनल. डू यू थिंक कि ये अगर मेरा तेरा प्रोफेशनल ग्राउंड इस पे रह गया होता तो Sometimes I feel that. See, because it happens when you live तेरे को with कोई them. गाली दे देगा, वो दोस्त को गाली दे रहा है, Right. दे आर नॉट रियलाइजिंग यू आर ऑल्सो हेडिंग द डिपार्टमेंट विच इज ब्रिंगिंग देम द वर्क दे आर गेटिंग. होता है ऐसा बहुत बार. So because this would have, I mean, this has happened because I am living with them inside the gaming house. मैं 24/7 में उनके साथ ही पूरा टाइम काट रहा हूँ, तो एक दोस्ती बन जाती है ऑब्वियसली. एंड बहुत क्रिएटर्स आके मेरे को बोलते भी है कि यार उनका कोई शूट है या उनका कोई ब्रांड डील है, उनको जाना है कहीं बाहर घूमने के लिए, तो मेरे को पर्सनली आके बोल देते कि ये मेरा थोड़ा जल्दी करवा दे, मेरे को 12 तारीख तक टाइम नहीं है, मेरे 7 तारीख को कंप्लीट करवा दे. तो वो चीज़ फिर वो एक पर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप दो टू वेज है. हाँ, उसके डिसएडवांटेज डिमेरिट्स भी हैं ऑब्वियसली. बैकग्राउंड तुम्हारा रहा है क्रिएटिविटी, मास मीडिया, जर्नलिज्म एंड ट्रांजिशनिंग इनटू मार्केटिंग एंड अ मार्केटर. हाउ डू यू बैलेंस दिस इनोवेशन क्रिएशन एंड डू यू टेक इट एन एडवांटेज अपनी मार्केटिंग में या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में, स्ट्रेटेजाइजिंग फ्यू थिंग्स? Does it help? Yeah, I think it helps a lot. It helps where I need to pitch the client कि हम क्या अलग करेंगे creators के साथ, because I have always been on the creative front. So I can guide the brand who has not worked with gamers before कि हम आपके प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस करके ये क्रिएटिव तरीके से हम लोग कंटेंट बनाएंगे एंड वो सब करेंगे, तो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प होता है. एंड आई थिंक या देयर इज़ अ बैलेंस. एंड जब से 8-bit में ज़्यादा काम करना चालू किया, आई थिंक आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव मच टाइम टू द क्रिएटिव फ्रंट ऑफ SATL. बट हाँ, जब मेरा ज़रूरत रहता है ऑब्वियसली आई कंट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन. राइट, बिकॉज अभी जो हमने वीडियो शूट किया EWC का अनाउंसमेंट, तो उसमें काफ़ी टाइम में बिहाइंड द सीन्स था. आई वाज डायरेक्टिंग सम पीपल एंड कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए. सो यार, आपका बेस्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट कौन सा रहा है SATL में जो आपने स्पीयरहेड किया हो शुरू से लेकर अब तक में, जिसमें आप पर्टिकुलरली वेरी प्राउड ऑफ? जिस ब्रीफ में बताओ कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट रहा है. आई थिंक आप टाइमलाइन, ऑब्वियसली आपको लोग देख नहीं पाते होंगे कि आप उस प्रोजेक्ट को, बट फिर भी लेट पीपल नो. ऑब्वियसली EWC हमने बता दिया, यू एंड अनिमेश्वर, आप तो कम्प्लीटली घुसे हुए थे दोनों वीडियोज़ में. कोई ऐसा वीडियो इनके अलावा जो यू आर वेरी प्राउड ऑफ की has been under your guidance? So you are asking me the creative front of it, like हाँ, मतलब मैंने बहुत बारी देखा है आप SATL की वीडियोस में, बहुत बारी कैसे सेटअप होना है, कहाँ कैमरास लगेंगे, क्या फ्लो बनेगा, वो आप कराते हैं. बहुत बारी मैंने बड़ी वीडियोस में भी देखा है आपको. Right. I think SATL, I mean the EWC announcement has to be the most biggest in-house project that we have done, because it was very tough to pull this off, and we were working with a very big crew. Yeah, so here only I'm coming. ये तो हो गया कि आपने crew भी था, आपने एक बहुत बड़े जिम्मेदारी संभाली. Right. With challenges when we were doing things in a limited budget. Correct. And throwing out massive videos which came to 1 million, 3 million, getting 3 million views. I think वैसा कोई प्रोजेक्ट बताओ. Mortals MDJT was one of the other projects that we did that was completely in-house. Spearheaded by you only. Right, and we did not hire any of the crew from outside. It was totally in-house. एंड वो एक प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग था एंड काफ़ी मज़ा आया था उसको करके, काफ़ी अच्छा निकल के आया था. एंड ऑब्वियसली व्हेन आई लुक बैक एट MDJT ऑन YouTube, आई रियलाइज दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ एंड द क्वालिटी हैज़ ऑब्वियसली इंक्रीज्ड, बिकॉज करते करते एंड आदि वाज ऑलवेज अ एडिटिंग गाय एंड नाउ ही कैन हैंडल द कैमराज ऑल्सो. एंड हमारी टीम ने भी काम कर करके काफ़ी सीखा है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. तो
Yeah, I think MDJT was one of the biggest projects. This EWC video was one of the very big projects. We heard it. और अभी तक हम थोड़ा सा ज़्यादा heavy and hard questions hit कर रहे थे. The podcast was, this episode was going more of towards professional front. थोड़ा मस्ती और थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा mood को light करते हैं and let's shoot some questions, embarrassing and hilarious both. स्वराज, वो 18 plus हो जाएगा. You know it got shot. You know, आप कैमरे में अंडरवेयर में बाथरूम में थे. अंडरवेयर में नहीं था, बाथरूम में थे. Obviously you must be in a, and probably I don't want to get there, था या नहीं था. You got, you know, you knew it got shot. And वो vlog में भी आ गया. And it became a meme viral all around the, मतलब आज भी आप दिखते हो तो लोग 18 plus हो जाएगा बोलते हैं. Yeah, तो A, why did you not stop it from being posted? B, when it posted, उसके बाद के आपके reactions, what was it? I think उस time K18 के vlogs were very popular for memes, है ना? So when he shot and I did not knew that it will make it to the final cut, but frankly speaking, वो आपका bathrobe खींच रहा था, if I'm not. हाँ, he was trying to snatch my bathrobe. हिंदी कर, ज़्यादा English. वो ज़्यादा वो मेरा ऐसा bathrobe पकड़ने की कोशिश कर रहा था and I was pulling away from him and I said कि नहीं 18 plus हो जाएगा. It was very spontaneous, ऐसा कोई planned नहीं था and it sort of kicked and viewers को काफ़ी अच्छा लगा. रोका क्यों नहीं उसको post करने से? See, because उस time पे तुम इतना लोग तुम्हें जानते भी नहीं थे. हाँ. You were new. तुम्हें एक बार कि लगा ये वीडियो जाएगा, कोई देखेगा, घर वाले देखेंगे या probably आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो वो देखेंगी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आई थिंक मस्ती में वो हो गया एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट में इन टुडेज एज ऑन सोशल मीडिया द बेस्ट थिंग यू कैन बी इज अ मीम. आई थिंक अगर आप मीम बन गए और वायरल पॉपुलर मीम बन गए तो आपको अंदर ही अंदर लड्डू भी फूटा था कि हाँ ऑब्वियसली फूटेगा. मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि हु डजंट लव अ लिटिल फेम, एवरीबॉडी डज. सो बीइंग प्योर ऑनेस्ट, शूटिंग ऑल क्वेश्चंस. आज भी कमेंट्स में यही आता है 18 प्लस हो जाएगा 18 प्लस. आई थिंक दैट हैज बिकम माय ऑरा लाइक बिकॉज पीपल ऑलवेज व्हेन आई कम ऑन कैमरा दे आर ऑलवेज लाइक ये कुछ तो 18 प्लस कर दो करके. तो या आई थिंक इट्स गुड. कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बीट 8-bit या बीट SATOL जो आपने लीड किया हो फ्रॉम स्क्रैच और इट हैज़ इम्पैक्टेड SATOL और 8-bit इन अ वे, कोई ऐसा याद आ रहा हो आपको? ऑब्वियसली MDJT आपने लीड किया, that was creatively head by you and it led to a lot of traction to Naman's channel and lot of people saw that. उसके अलावा इस तरह की कोई चीज़? आई थिंक कंटेंट वाइज तो अभी ऐसा याद नहीं आ रहा है. अगर आप मेरे को पहले ये क्वेश्चन बताते तो आई वुड हैव डन सम रिसर्च, बट ऑन ब्रांड्स फ्रंट आई थिंक मी एंड अनिमेश वी हैव पुल्ड ऑफ a lot of big campaigns that seemed very impossible at the start and but वो बहुत काफ़ी smoothly हो गया. We have led like approximately 25-30 creators to multiple events and you know launches, offline launches. That becomes a very tricky thing because we work with a very limited workforce. हमारे बहुत कम लोगों की वर्कफोर्स में वी ट्राई टू मैनेज एज मच क्रिएटर्स एज पॉसिबल. तो या that's like one thing. So Suraj, obviously you just said किसको थोड़ा फेम अच्छा नहीं लगता. तो all this wills कभी सोचा नहीं कि you're all over surrounded by creators, सारा दिन कैमरा घूमते रहते हैं व्लॉग में, सारा दिन लाइव स्ट्रीम चलते रहते, कभी सोचा नहीं कि मैं भी यार थोड़ा सा घी मैं भी निकाल लेता हूँ इस चलते हुए एंड मैं भी अपना चालू कर देता हूँ एज अ क्रिएटर जर्नी? राइट. सो इंस्टाग्राम में तो आपने काफ़ी कुछ पोस्ट करना शुरू किया था बट वो भी मैं बहुत लेजी हूँ. आई डोंट पोस्ट मच ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. वो भी एक बार उड़ गया था इंस्टाग्राम, अभी दोबारा से बनाया है थोड़े टाइम पहले. बट मेरे को बहुत लोगों ने ये चीज़ बोला है कि तू क्यों नहीं करता. बट इट्स लाइक दो नाव में सवार होने वाली बात है वो कि you know either I manage creators and because honestly I want to give my full time to researching more of you know what brands are doing, what other content creators are doing so that I can bring all those research back. कभी विचार नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया honestly speaking because a lot of people have asked me कि you know comments में भी आता है कि कितनी बार किसी के vlog में कि खुद का channel क्यों नहीं चालू करता या खुद क्यों नहीं करता. तो वो it is going to be very foolish thing
if I start my own channel, because I cannot manage and create content side by side, and I know myself कि मैं अगर channel बनाता भी हूँ तो वो flop हो जाएगा, because I'm a very lazy person in general. And हाँ वही कि दो नाव में सवार होने वाली बात है, ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है, लालच नहीं करना है। आपका इंस्टाग्राम प्लग कर देता हूँ फिर भी वहाँ पे। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, काफ़ी अच्छा कंटेंट आता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ कंटेंट डाल लेंगे शायद। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए वो हो सकता है, बट आप तो ब्लेटेंट आदमी हो, आपको ज़्यादा दुनिया से मतलब रहता नहीं है। 3 सबसे डिफिकल्ट क्रिएटर्स कौन है SATL में डील करने वाले? आई टेल यू, आई वाज बी ऑनेस्ट, नाम लो, ज़्यादा लंबी कहानियाँ नहीं बनानी, और डोंट मेक इट डिप्लोमेटिक, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, नाम लो और बताओ। I'll tell you. Thank you for asking this question. I want everybody to know this. The most difficult creator to manage, to work with, campaign execution wise or whatever brief देना या campaign execute कराना is 8-Bit Thug. ठीक है। 8-Bit Thug is the most difficult creator to deal with, because ठीक है, वो उसका भी देखो अब occasionally होता है, you are now being diplomatic. I'm not being diplomatic. I'm not being diplomatic. मैं, मेरे को भी पता है वो कैसे करता है, 2-2 महीने लेट करता है। ये अब नाउ 3 क्रिएटर्स के नाम दो मुझे। No, because see, campaign is campaign. The money is coming. The money is coming. I understand everything. I am talking भाई अनिमेश का तो वही बात हो गया ना, बॉस थिंग कि भाई यार नहीं करेगा। नहीं, बट जब मैं उसके पास कैंपेन लेके जाता हूँ ना, तो वो मेरा बॉस नहीं रहता, वो मेरे क्रिएटर ही रहता है। क्रिएटर ही रहता है, बट वो फिर भी बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसको पता है ना कि मैं संभाल लूंगा उसको। वो मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूँ द क्रिएटर जिसको पता है ब्रांड कल को चला जाए या ब्रांड क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस केस में डील करने में 3 क्रिएटर्स के नाम। इट्स नॉट वैसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि ज्यादा खराब या ज्यादा वैसा, बट देयर इज मिली। अच्छा, मिली क्या मिली? वेरी डिफिकल्ट क्रिएटर टू डील विथ, बिकॉज शी नेवर आंसर्स कॉल्स एंड ऑन टाइम बेसिकली। वैसे शी आंसर, एक्सप्लेनेशन इतनी मत दो, बी प्रिसाइज। समटाइम्स she just she doesn't answer properly, और campaign के time पे late हो जाता। basically I don't want delays to happen in my campaign, तो वो हो जाता है कृतिका के साथ, and same case with Millie also. I think third name मैं अगर लूँ, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा कोई और क्रिएटर तो मुझे लग नहीं रहा है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कृतिका है, मिली है, देखिए आपने 2-3 बारी मुझे एक कॉमन क्रिएटर के लिए कॉल किया है, तो आप अब डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, तो इतना आपको अगर हार्ड टाइम नहीं था तो मेरे पास आपने मैक्सिमम एक ही क्रिएटर की कंप्लेंट करी है। मुझे तो लग रहा था आप उसका फर्स्ट नाम लेंगे। रेबेल? नहीं, कौन? रेबेल तो ऑब्वियसली वो तो आप खुद ही हैंडल कर लेते हैं, बट मोहतरमा फ़ोन नहीं उठा रही, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अर्ली डेज, अभी तो सही हो गई है पायल। हाँ हाँ अभी हाँ, शी हैज़ आफ्टर कमिंग ऑफ सिंस दिस, ये 2 साल से जो मैनेजर आई है उनकी, उसके पहले की बात अगर करें तो पॉइंट ये कि ना कि पहले मैनेजर भी थी, उसकी जो पर्सनल मैनेजर थी वो भी थी, अब उसके पर्सनल मैनेजर भी फ़ोन नहीं उठाती थी, तो मैं फंस जाता था कि मैं सवाल किससे लूँ या जवाब किससे लूँ। तो हाँ, बट इन रिसेंट ईयर्स द टेबल्स हैव टर्न्ड, नाउ शी कॉल्स मी सामने से एंड शी आस्क्स कि यार ऑब्वियसली 1 साल से तो शी इज ट्रांजिट लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट टुडे आल्सो एक कैंपेन की बात चल रही है एक ब्रांड के साथ, एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद दैट ब्रांड, एंड वो अगर इफ़ इट वर्क्स आउट यू पीपल विल नो। तो बातचीत चल रहा है उस ब्रांड के साथ, देर आर सम हिंड्रेंसेस दैट आर गोइंग ऑन, सो शी ऑन अ डेली बेसिस इज टेकिंग फॉलोअप्स फ्रॉम मी, कॉल करके कि क्या हुआ उसका, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद देम, सो दैट फील्स वेरी गुड। और 3 बेस्ट क्रिएटर्स इन SATL जो कैंपेन आया, स्क्रिप्ट मिली या कैंपेन का वो फ्लो चार्ट मिला, एंड यू डोंट हैव टू कॉल अगेन, द जॉब इज डन। So can I include you in creators now? तेरी मर्जी। ठीक है, so Goldie is one of the creators who likes getting the job done as soon as it's on his head, because इनको टेंशन हो जाता है कि अभी बेस्ट देना है और जल्दी देना है, because obviously he doesn't want the brand to call me out for anything or call him out, because obviously he's the founder also. तो हाँ, Goldie is one of the most sincere creators and वेरी फास्ट एक्टिंग, बिकॉज जैसे ही कैंपेन आता है, कैंपेन क्लोज होता है एंड गोल्डी बाय के लिए कोई कैंपेन रहता है, तो ही इज़ ऑलवेज कि पोची मेरा जल्दी करा,
स्क्रिप्ट आई कि नहीं आई, फटाफट शूट करो, आदि को बुलाओ, धीरज को बुलाओ, शूट करके ख़त्म करते हैं, दे देते हैं जल्दी और अच्छा क्वालिटी में देते हैं. सो या गोल्डीबाई इज़ वन क्रिएटर. आई थिंक जोकर is another creator who is very serious with his work, and he puts his heart into whatever content he's creating, and I personally like that thing, because whenever you are doing branded content, I think in today's age of marketing and advertising, the product cannot obviously take the front seat. The front seat should be the narrative, the story, the concept behind the the video. So Joker has this thing in his mind कि जितना ज़्यादा हो सके entertaining बनाओ और creative बनाओ content को, so the branded thing doesn't look very branded, like the content should look very mellow, and it should go very organic when you are introducing a brand into your video. So yeah, and he's very sincere with his timelines also. Joker is never late, and he has the best scripts and best concepts when it comes to delivering videos. So yeah, Joker is there. And Joker, Goldiebai, and I think Kashvi is one of the creators who is very creative, and she likes delivering quality content, because I won't take names, but there are creators inside our organization, and हम लोग काफ़ी बाहर के creators के साथ भी काम करते हैं. Me and Animesh have discussed it quite a few times. Right, that creators get fussy a lot of time कि कि मैं reshoot नहीं करूँगा या reshoot नहीं करूँगी, and क्यों, क्या problem है. They ask a lot of questions कि brand को क्या problem है इस video में. But Kashvi is one creator where I have never experienced this with her, that अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि brand is not happy with the video, she is ready to reshoot the entire thing, and she never asks a question, and she is very versatile in that सेंस कि वापस करना है शूट, कुछ कैमरा क्वालिटी ख़राब है, आई विल डू इट अगेन, नो वरीज. तो स्वराज, अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स, देखो बहुत लोग सवाल करते हैं. वी हैव बीन स्पेंडिंग ऑलमोस्ट स्पेंड 4-5 years इन दिस इंडस्ट्री नाउ, एंड आप ऑलरेडी लोएस्ट फेज से पीक की हमारी जर्नी अभी जो चल रही है उसमें यू आर राइडिंग अलॉन्ग. तो कंटेंट क्रिएटर्स, अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स, एक सवाल जो लोगों के दिमाग में रहता है बहुत ज़्यादा, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे एसएडीएल ज्वाइन करना है, आई वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. आपके लिए व्हाट आर द एडवाइस जो आप देना चाहोगे कि भाई कंटेंट क्रिएटर बनना है तो ये करो, ये आपकी जर्नी होनी चाहिए, एंड दिस इज़ हाउ यू गेट नोटिस्ड विद द लाइक्स ऑफ टॉप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया और प्रॉब्ली टॉप ब्रांड्स ऑफ इंडिया. करेक्ट. दोनों पर्सपेक्टिव से बताना, ऑर्गेनाइजेशनल भी एंड ब्रांड से भी. क्या ब्रांड नोटिस करता है एक एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर में? दिस इज़ द क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 1 हो गया, आपको अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी अगर शुरू करनी है, स्पेशली इन गेमिंग जो आपका फोट है, व्हाट डू यू एडवाइस? व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, आई थिंक one thing that should come to your mind is what is your niche. You have to pick a niche and work towards that. हम particularly gaming के बारे में बात कर रहे हैं. Niche is somebody has picked the niche gaming. Gaming is also a very wide category. If you want to do live streaming, and if you want to do VODs, and like if you want to focus on Instagram, Reels, so you have to have a strategy in place कि आपको कौन सी टारगेट ऑडियंस को वो कंटेंट फीड करना है, एंड क्या कंटेंट. सो आप ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम इंस्पिरेशन ऑफ योर ओन, कि किसी का देख के या किसी से इंस्पायर होके अगर आप कंटेंट बना रहे हो, सो यू शुड नॉट एग्जैक्टली कॉपी वट एवर द अदर पर्सन इज डूइंग, बट यू हैव टू ऐड अ certain style of yours, certain masala of yours, and you have to prepare a strategy कि ऐसा. मैं तू फिर टेक्निकल तरफ जा रहा है, तू बहुत डीप एकदम. भाई XYZ बंदा है, एस्पिरेशनल है, गेमिंग में कुछ करना है, बड़ा करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है. नॉट टॉकिंग अबाउट ई-स्पोर्ट्स जिसकी तेरे को नॉलेज है, ऑब्वियसली. उनको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में क्या क्वालिटीज़ एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर की होती है हिंदी में बताना, और क्या ये हाउ शुड दे बिगिन देयर जर्नी, और कैसे उसको आगे टेक अवे फॉरवर्ड करना है, सो दैट वो नोटिस हो जाए. फर्स्ट थिंग आई वुड से स्टार्ट टुडे. हाँ, आप सोचोगे, आप प्लान करोगे कि मेरे को ये करना है, आई हैव अ प्लान इन माइंड, बट आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट. प्लान बहुत लोगों के पास रहता है, लाइक मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है पिक्चर की, बट मैं नहीं बना पाऊंगा ऑब्वियसली. जिस दिन बनाने बैठूंगा उसी दिन बना पाऊंगा. सो हैव टू स्टार्ट टुडे, डोंट डिले द वर्क,
and don't think too much about, because I understand you look at a lot of, you watch a lot of content online and you see कि बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी चाहिए या बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी चाहिए मुझे. दैट योर कंटेंट मैटर्स. आप एक छोटे से कैमरा के साथ, अपने फ़ोन कैमरा के साथ यू कैन स्टार्ट. And I've seen people who have started with a very basic camera, and now they have proper production crew in place for their content. So start today, start small only. Don't try to ask for bigger equipments from your parents or whatever. You'll earn money, you'll get a good camera for yourself. And consistency, I think जो main game है, that is consistency only, because a lot of people, वो लोग हार मान जाते हैं कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, या मेरे 2000 ही व्यूज़ आ रहे हैं, या मेरे 1000 ही व्यूज़ आ रहे हैं. आई थिंक हमारे रोस्टर में भी बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन लोगों ने कभी स्टार्ट किया होगा तो उनके इतने ही व्यूज़ आते होंगे, बट दैट वन, इट टेक्स वन वीडियो दैट गोज़ वायरल एंड दैट गोज़ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड दैट शोज़ कि हाँ भाई ये देखो ये बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है. सो कंसिस्टेंसी में बहुत लोग मार खा जाते हैं. आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू स्टार्टेड, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड हार मत मानो. आएगा धीरे धीरे करके, इट स्टार्ट ग्रोइंग. मैं ये एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स जो दे आर डूइंग डिसेंट, राइट, मैं उनके लिए आई थिंक यू शुड फोकस ऑन ग्रोथ. Because market trends is okay. I mean trends पे काम करना is fine as long as it's giving you views. आप trend को follow करते जा रहे हो and you are not getting enough views, तो वो फ़ायदा नहीं. I mean the audience is not loving it, and brand आएगा आपके चैनल पे आके देखेगा लास्ट 10 लाइव स्ट्रीम इसने जो किए उसके व्यूज़ कैसे, लास्ट 10 वीडियो तुमने डाली है, चाहे उसमें बहुत अच्छा कंटेंट ही क्यों ना हो या बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट ही क्यों ना हो, बट ब्रांड्स विल सी नंबर्स एंड ऑब्वियसली क्वालिटी ऑल्सो, बट नंबर्स हैज़ टू, बिकॉज मुझे एज अ टैलेंट मैनेजर, एज अ ब्रांड, आई मीन टू द ब्रांड आई हैव टू शो नंबर्स एंड आई हैव टू शो KPIs की इसने इतने व्यूज़ गार्नर किए. तो या ब्रांड विल ऑलवेज लुक फॉर ग्रोथ कि ये क्रिएटर कैसा है. एक मेमोरेबल मोमेंट आपका since you've been in SATL, the biggest memorable moment? I think there's not one moment. I think one moment I'm asking. I cannot name one moment. I think life in SATL has always been, every morning it's a new challenge and every night it's a new celebration. So there's one moment, then there comes another moment जो top कर जाता है. तो till now बताओ, probably esports award first time. Yeah, or esports, probably EWC का announcement, esports or awards, probably something like you've been gifted a very precious thing. esports awards was one of like जो हमने first time जब content creator of the content group of the year हमने जीता, that was very unbelievable moment for me. और शायद वही साल था जब आप बहुत proactively content में right, it was very emotional that alongside big organizations of across the globe हम लोग फर्स्ट आए एंड जाके like ग्लोबल स्टेज में एक हमने अपना नाम वो किया. दैट वाज वन मोमेंट व्हिच sort of gave me this realization that we're doing something. And I am contributing to an organization who's doing so well globally. So it's a very proud moment for me, and मैं सबको यही बताता हूँ कि we have global recognition and I work for this company and ऐसा. एक brief में मुझे बताना सराज कि how life changed post SATL A, friends के क्या reaction रहे जब आप first time they got to know, oh Suraj now is, क्योंकि अनिमेश को obviously सब जानते थे. Right. अनिमेश had done his part of starting the journey of fame. Right. ये आपके केस में थोड़ा सा लेट हुआ. Right. और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बिहाइंड द कैमरा ही सबने देखा है. जी. तो कभी ऐसा हुआ है, जैसे आपने बताया कि आपके रिलेटिव राजस्थान में है, वो सब तो आपने बताया, कोई ऐसा इंस्टेंस है जो आपको याद हो कि कोई फैन मोमेंट ऐसा हो गया हो कि भाई या कोई सपोर्टर SATL का आपके साथ ऐसा मोमेंट हो गया हो जो आपको बड़ा सरप्राइज छोड़ा हो? सो देयर वाज दिस गाय इन माय, हाँ, एक दोस्त था मेरा कॉलेज में, काफ़ी अच्छा दोस्त था. फिर काफ़ी टाइम से उसे टच छूट गया था एंड सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं आफ्टर कॉलेज. तो वो अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो गया था, मैं
उसके बाद गुवाहाटी में, फिर गुवाहाटी से फिर 8-bit ज्वाइन किया है, एसेट्यूल गेमिंग हाउस में रहने लग गया. One fine day, this is last year, he called me up one day and I had his number saved obviously. तो मैंने एक रिंग में उठा लिया उसका फ़ोन. So he got very emotional. He was like, अरे bro, I see you on YouTube every time and I keep showing. So मैं उसके घर भी जाता था, उसके मॉम से भी मिला हुआ हूँ मैं उसके घर जाके बैक इन दिल्ली. तो वो बहुत इमोशनल हो गया कि यार मैं अपनी मॉम को भी दिखाता हूँ कि ये मेरे साथ कॉलेज में था बंदा, अभी ये बहुत अच्छा काम. सो ही फॉलोज एसेट्यूएल एंड ही इज़ अ वेरी एविड गेमर ऑल्सो, सो ही इज़ अ वेरी गेमिंग फ़ैन. तो वो मेरे को वो इतना इन डेप्थ उसको पता है गेमिंग के बारे में, वो मेरे को बताते रहता है कि हाँ ब्रो मैंने तेरे को देखा, उसकी वीडियो में देखा, उसकी वीडियो में देखा. एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड कि भाई मेरे को लगा तू मेरा फ़ोन ही नहीं उठाएगा और तू तो ऐसा मोमेंट कभी जो आप कहीं पब्लिकली हम में से किसी के साथ हो और कोई फ़ैन आ गया हो, फर्स्ट टाइम कभी आपको ऐसा लगा हो, अब तो यूज्ड टू हो गए हो कि सुराज भाई या पोची भाई फ़ोटो खिंचवा लो, कैसा तब आपको पहली बार राग लगा होगा कि भाई? बहुत मज़ा आया. आई थिंक वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट मोमेंट्स इन दीज टर्म्स कि कोई मेरे को पहचान रहा है was एसेट्यूल गेमिंग फेस्ट इन बैंगलोर. आपके नाम के चैंट हो रहे थे. करेक्ट. सो आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड. हाँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100-200 पीपल स्टैंडिंग टुगेदर एंड विल बी चैंटिंग पोची पोची. तो वो चीज़ देख के बहुत मज़ा सा आया कि this is like a dream come true, obviously. Like who doesn't want it? More or less हमने सब कुछ आपसे पूछ ही लिया, which I should have asked you. जी. I'm not going to your personal life, but एक छोटा सा सवाल. हाँ. You are young. हाँ. Obviously, young people call out for partners and things like those. जी. Do you have a partner? No, currently I'm single. Currently you're single. Yeah. So आपका partner था? Yeah, when I joined SATUL, yes. So did this work take a thing कि प्रोफेशनल लाइफ भी हम लोग का ऐसा है, आपका भी ऐसा है कि obviously somebody has to have a very understandable partner. एक तो घर से दूर रहना पड़ता है, Right. Then there is no guarantee of when you go back home. Then there is work over work. Right. You cannot attend phones on times. Yeah. You cannot give the partner that time needed. मतलब बहुत बारी होता है, but obviously वो understanding चाहिए इसमें. तो लगता है कि लाइफ मतलब इस केस में बीइंग चाहे वो फैमिली का भी मैटर हो, हाँ. कि भाई टाइम हैज़ बीन अ वेरी बिग एनिमी. ऐसा कुछ है नहीं गुल्डिया, मिली नहीं है अभी तक. टाइम पूरा है. हाँ. मिली नहीं. तो यार सुराज, जैसे जिस तरीके से यू आर स्मार्ट गाय, यू आर गुड लुकिंग, यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, बोलते भी अच्छा हो, लोग देखते भी हैं. इंस्टा में ऐसा कभी DM स्लाइड इन हुए हैं कि? DM होते हैं स्लाइड इन. हाँ. उस दिन मैंने आदि से भी यही बात की थी. हाँ. तो किस तरह के DM? मतलब somebody want to hook up with you or hang around with you? हाँ, मतलब I think there have been instances where people एक तो पहला बात पता नहीं चलता है कि फेक अकाउंट है, हाँ. कि जेन्युइनली कोई इंसान है. तो पता चला कि कोई लौंडा निकले और मैं उसको रिप्लाई कर दूँ, वो स्टोरी लगा के टैग कर दे मुझे भी आपको भी, हाँ. तो उसमें बेइज्जती हो जाएगी. हाँ. तो मैं रिप्लाई नहीं करता. नहीं, तो कर दे उसमें क्या है भाई, तुमने सामने से टेक्स्ट नहीं किया ना, सामने का टेक्स्ट आया है. नहीं, कभी कभार तो खुद का ही मन करता है ना टेक्स्ट कर दूं. हाँ. तो उसमें अगर मैंने कर दिया, अच्छा, वो तो देखो प्रोफेशनली आई थिंक हमारे यहाँ कोशिश रहती है कि ऑब्वियसली दैट एवरीवन ड्रॉज अ लाइन. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे तुम्हारे में कोई ऐसा DM स्लाइड हुआ है कि रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो बट तुम्हें लगा नहीं यार प्रोफेशनली लफड़ा हो जाएगा? हाँ, वही मेरे दिमाग में वही आता है कि लफड़ा हो जाएगा, तो मैं वो आई अवॉइड करते हो. या आउटसाइड ऑफ फेम इज समटाइम्स अ लिटिल एगनाइजिंग आल्सो, कि चीज़ें आपको जो शायद आप, मेरे साथ भी होता है कि मैं शायद आज 8-bit गोल्डी ना होता तो जी मैं ऐसी बहुत शायद obviously there comes a sense of responsibility कि I should not be doing this because I have a lot of people. You are obviously an influencer, तो you have to influence and you have to be a good influence on people. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. तो यार that comes in mind. But ऐसा इतना नहीं हुआ है कि भरे पड़े DMs और मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ. वंडरफुल एपिसोड यार. बट क्लोज तो करेंगे तुम्हारे को थोड़ा दर्द देके. मैं तुमसे SATUL क्रिएटर्स का नहीं पूछूंगा क्योंकि कई क्रिएटर को ये ना लग जाए किसी को कि ऐसा मेरे बारे में सोचता है इसलिए ब्रांड डील नहीं आती.
might take it that way. So I don't want to risk it there. But I want to do a this and that with you, with your Guwahati friend circle जो आपको बहुत करीब है दिल के. अच्छा. I see you having the blast of your time, of your life whenever you're in Guwahati. आप मतलब अलग ही एक जोन में होते हो. Yeah, I love Guwahati. I love मतलब Guwahati. मोस्टली काम भी उस टाइम पे डिप हो जाता है बिकॉज अब काम वाम भी फोकस नहीं कर पाते. शुरू करते हैं दिस एंड दैट. इट विल बी द क्लोजर ऑफ दिस एपिसोड. Okay. नाम कहाँ से है क्या है वो मैंने अपना इंटेल से कलेक्ट कर लिया. अच्छा. ठीक है. यू माइट बी सरप्राइज कि आप कैसे जानते हो बट आई हैव द लिस्ट. सो दिस एंड दैट विद पोची, स्वराज, गुवाहाटी वालों अगर देख रहे हो तो शैलेश और अमन. अमन obviously. अमन और मयंक. ये तो दुविधा में डालने वाला सवाल पूछा. आगे और ये दुविधा इंटेल है. दे कौन रहा है? ये कहाँ से आया इतना? ये अमन और वो तो कोई नोन लोग भी नहीं है. आप दिस एंड दैट चूज करिए यार, उससे क्या ठीक है, फर्क I'll पड़ता go है? with अमन. अमन और रितेश. अमन. अमन और कुकू. अमन. अमन और वीनू. See again, Vinu is my childhood friend. ठीक You're है. not supposed to say Okay. that. I'll go with Vinu. वीनू और अवीश. ये तो भाइयों के बीच में झगड़ा करा रहे हो. ये देखो वीनू और अवीश. और अभी डेंजर होने वाली है लिस्ट. ठीक है. So अविश. be prepared. अविश. अवीश और गुड्डू. Obviously अविश. गुड्डू भूल गए हमें यार. अवीश और अदिति. अविश is my childhood friend. Aditi यार is. आप He cannot. देखिए, you are being diplomatic, Swaraj. You're not supposed to say that. अविश. अविश और रूबी. यार ये तो फंसाओगे यार. मेरे ज़्यादा क्लोज तो ऑब्वियसली अविश ही है, लेकिन अविश? हाँ ठीक है अविश. अविश और थग. अरे यार क्या, मैं थग और अविश तो हम लोग एकदम बचपन के यार है. अब ये तो लड़ाई करवा दोगे आप. अविश और थग. थग तो है ही. थग है. अविश और थग. दोस्ती में पूछ रहे हो ना. दिस और दैट. दिस और दैट क्या होता है? बस चूज वन. वी विल एंड द एपिसोड हियर नो गाइस. नो नो. अविश और थग. देखो थग हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ. देखो लेट्स फिर वो प्रोफेशनल ग्राउंड पे आ रहा है. थग और अविश एज फ्रेंड्स, दैट्स इट. थग आई विल गो विद थग. कोई हार्म नहीं है. अविश तेरे को बहुत प्यार करता है. एंड बाकी सब जो भी लिस्ट में है, मैं रूबी और शायद एक दो लोगों को ही जानता हूँ. सो नो ऑफेंस, मैंने ज़बरदस्ती इससे बुलवाया है. और हमको लिस्ट भी आप देख सकते हो बिना नाम दिए. ओह माय गॉड. सो द बॉस हिमसेल्फ गिव मी द लिस्ट, बट ही लव्स एवरीवन. ये मुझे पता है, ऐसा ही एसएटीएल में भी है. नॉट बटरिंग अराउंड, बट ही कीप्स अ बैलेंस ऑफ फ्रेंडशिप विद एवरीवन. सो स्वराज, थैंक यू फॉर दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गोल्डी भाई. बहुत मज़ा आया. आई थिंक दिस क्लोजर ऑफ दिस सीजन सीरीज़. मेरे को कुछ कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आए थे शुरू के एपिसोड्स में. एंड कुछ लोगों का कहना था वाई यू डिड नॉट डू दिस विद bring SATL creators one by one, but I think that is what might get me a little numbers or might get me a little things, क्योंकि सबके almost episodes कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जर्नी के बारे में. But I think मेरे अगर दिल से पूछे तो I wanted to do this since a long time, not just because सब कुछ ही तो सेम है आप लोगों में और क्रिएटर्स में. राइट. If you are living with us, you are having fun with us. राइट. But एक वो जो वैलिडेशन की बात आ जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव बीन मिसिंग लेटली. तो थैंक यू. एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था. आई होप मैंने आपको ऑफेंड ना करा हो. नहीं ऑफेंसिव तो कुछ था ही नहीं.